Very good morning to everyone, and welcome to the Than session today. So, we're starting a new topic, which is educate your feelings. And for this, we have Sister Ruchi who's joined us. Nidhi, welcome to the Than series. Over to you Thank and Om you. Shanti. I'm Shanti. Good morning, everyone. So, in our today's session, when we say educate your feelings, it is important to understand um, what is so important about feelings. Basically, the difference between we and a non-living object, or difference between my intelligence and AI, is only feelings. I can feel what I am doing, and they have a very big database. AI has got, artificial intelligence has got a lot of data, and they can have a enormous number of permutation combination. They can give you a very nice and very near correct result, but it cannot feel. So making me alive is my feeling. I can feel others feeling, I can understand others feeling, I can work based on feelings. So feelings are those important part of life where you are actually, it gives a sense of living. Well, when we say education on my feelings, so what is that we are not able to actually, what means we used to feel since our childhood, then why we need to get this introduction of feelings? Well, when we go deeper into feeling concept, it is to understand, these are three questions on your screen: how feelings are created, why feelings are created, and how to sail through the waves of feelings. Well, if I ask you how feelings are created, could you please share? फीलिंग्स बनती कैसे हैं? हाँ जी, आप माइक में बोलिए या फिर चैट में लिखिए। बोलना तो पड़ेगा, आप जब तक बोलेंगे नहीं मैं नहीं बोलूंगी। फीलिंग्स कैसे क्रिएट होते हैं? हाँ, जनरली थ्रू आउट द डे, एक दिन में कितनी बार बोलते होंगे, ये बात मुझे फील हो गई, मुझे फील हो रहा है कि मैं ये करूं या ना करूं। पता नहीं उसको कुछ फील क्यों नहीं होता है। सो एक दिन में कम से कम 1,000 बार तो हम फीलिंग वर्ड्स बोलते हैं। वेल, बिकॉज ऑफ थॉट्स, when you are sentimental, thinking or experience generates feelings. Okay, nice. और कोई? Feelings are the reactions as per emotional well-being. Good. बनते कैसे हैं? बनते कहाँ से हैं? थॉट से ही बनते हैं। बनते कैसे हैं? रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्सेस के बेस्ड पर हमारे फीलिंग्स बनते हैं। वेल, सो अभी मैं आपको एक कुछ समझाती हूँ कि फीलिंग्स हमारे दिमाग के अंदर यहाँ क्या क्या होता है, वो मैं आपको समझाती हूँ। आपको एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ये इतने सारे लोगों के नाम क्यों ढूंढ रहे हैं? ओके, राइट। सो अब हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ फीलिंग्स में क्या होता है। There are so many things floating here and there. Umesh Verma, Amit Kumar.
Uh, is it all others are also opening their whiteboards or what happened? Yes, Didi, that's the reason. I mean, showing like that. हाँ, आपको व्हाइट बोर्ड नहीं ओपन करना है, मैं ओपन कर रही हूँ. So if host can help me in that, I think. Okay, so I will draw something here. ये एक पर्सन है, ठीक है, and this person has got a big brain space, mind space. देखिए, ओके. अब क्या होता है, जो भी चीज हम देखते हैं, हमारी आईज से जो इनपुट होता है, हम जो सुनते हैं, या जो हमको स्किन से फील होता है, ये सारी चीजें हमारे अंदर थॉट्स क्रिएट करते हैं. ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये थॉट्स हैं. ये थॉट्स क्रिएट करते हैं. नेचुरली थॉट्स प्रोसेस अपने आप से ये बैक होता जाता है, इधर भी होता है, इधर भी थॉट्स क्रिएट होते हैं. और ये नेचुरली, ये थॉट्स थोड़े 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 समय के बाद बाहर जाते जाते हैं. अब क्या होता है, ये जो है ना हमारा ब्रेन स्पेस, इसमें एक छोटी सी एग्जिट है. ये एग्जिट है. ये एग्जिट को क्या करते हैं, यहां से हमारे थॉट्स की एग्जिट होती है. जो थॉट्स, अब ये नहीं समझना कि दिमाग के अंदर ऐसा बड़ा सा कुछ होता है, ये मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ. अब क्या होगा कि जैसे ओके, फिर से बनाते हैं. ये एक व्यक्ति है, ये इसका दिमाग है, और ये इसके ब्रेन स्पेस में यहाँ पर एग्जिट है. हम जो कुछ भी सोचते हैं वो अपने रास्ते यहाँ से यहाँ जा रहा होता है. जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, वो हमारे अंदर एक थॉट जनरेट करता है. और समय के साथ ये थॉट धीरे 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 इधर उधर जाता रहता है. जाते 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 एक दिन ये एग्जिट हो जाता है. जैसे ही ये एग्जिट होता है, वो क्या होता है, हम उस चीज को भूल जाते हैं. हम उस चीज को भूल जाते हैं. अब होता ये है कि ये थॉट अपने आप से जा रहा होता है. जैसे अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपकी 6th क्लास का हिंदी बुक का 3rd चैप्टर कौन सा था, याद है? नहीं याद है ना? वेल वेल वेल, ये इतनी सारी ड्राइंग्स. आप आई थिंक सेटिंग्स में अगर चेंज कर देंगे तो अच्छा रहेगा, होस्ट. वेल, सो अब क्या होता है कि जब हमको हिंदी बुक का 3rd चैप्टर नहीं याद है, लेकिन हमको ये याद है कि हमारी प्राइमरी स्कूल की टीचर कौन थी ना. कई सारे टीचर्स हमको याद हैं. क्यों याद है टीचर? क्योंकि वो हमारे अंदर गया. अब फीलिंग्स कैसे क्रिएट होते हैं, देखिए क्या होता है. मेरे थॉट्स क्रिएट हुए, ये अपने रास्ते जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे. इतने में से मुझे ये बात याद आई. आप में से ऐसा होता है कोई झगड़ा या कोई बुरी बात जिसको हम याद नहीं रखना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, लेकिन हम उसको भूल नहीं पाते हैं? होता है ऐसा, हम उसको भूल नहीं पाते. क्यों? क्योंकि ये थॉट्स अपने रास्ते जा रहे थे. हमने क्या किया, मुंह से ये बात बोली, किसी को सुनाई, क्या हुआ, ये वहां से फिर से यहां आ गया.
वेल, ये बहुत सारे ही कुछ आ रहे हैं पिक्चर्स, या फिर मैं पेपर पेन पे बनाऊं? It is distracting and not able to draw it clearly. Supna Ben, can you help? Or Anushka Ben can help? We've changed the settings, Didi. You can do it now. Okay. Could you make this ये big वाला line remove कर सकते हैं? Still I can see people floating here and there. Okay, fine. Thank you. So जब हमने ये बात रिवाइज की, क्या होता है, ये हमारी ये थॉट जो चला गया था अपने रास्ते, यहां तक चला गया था, ये वापस यहाँ आ जाता है और इसकी जर्नी फिर यहाँ से शुरू होती है, फिर यहाँ से शुरू होती है, फिर यहाँ से, फिर ये बेचारा यहाँ तक पहुंचा, ये वाला थॉट जिसको हम भूलना चाह रहे थे, इतने में मैंने फिर किसी को सुना दिया, ये वापस यहाँ आ गया। अब जब नंबर ऑफ टाइम वो जा रहा था और मैं उसको वापस बुला रही थी, तो होता ये है, हमारे इसके अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एक माइंड स्पेस में एक फोल्डर होता है जिसका नाम होता है इम्पोर्टेंट फोल्डर। ये इंटरनल मशीनरी कहती है कि भाई ये वाला थॉट इनके लिए बहुत जरूरी है, एक बार बुलाया है, दूसरी बार बुलाया, तो ऑटोमेटिकली वो इस थॉट को क्या करती है, भेज देती है इंटरनल मशीनरी में, सॉरी इंपॉर्टेंट वाले फोल्डर में। अब आप उसको नहीं भूल सकते हैं क्योंकि अब वो आपकी फीलिंग्स में समा गया। जो थॉट हम रिपीटेडली सोचते हैं, जो थॉट हम रिपीटेडली सोच रहे होते हैं, वो थॉट हम क्या करते हैं, वो थॉट हमारे ऊपर फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। नॉट जस्ट रिपीटेड थिंकिंग but also actually not just repeated thinking, revising in it multiple time with some purpose, it develop a feeling inside. Only every thought do not generate a feeling. Generally हम कहते हैं, हम सोचते हैं तो थॉट्स फीलिंग्स जनरेट होते हैं। ऐसा होता तो फिर हर थॉट फीलिंग जनरेट करता था ना। हर थॉट फीलिंग नहीं जनरेट करता है। रास्ते पे चलते हुए कितने सारे लोगों से हम मिल रहे होते हैं, उनके द्वारा हमको कोई फीलिंग नहीं आती, बट सम पर्सन ड्यूरिंग माई वे we generate a feeling about them, and this is how feelings are created. So if you revise your feelings thoughts number of times, and if you revise with a purpose, with a motive, then your feelings are created. Why feelings are created? Second question is why feelings are created. Feelings are good method to remember. आप एक बात बताइए, आपसे अगर मैं पूछूं, आज ट्यूसडे है ना, आज 3 दिसंबर है, 3 नवंबर को क्या खाया था आपको याद है? 3 नवंबर का नाश्ता याद है? ब्रेकफास्ट नहीं याद होगा मोस्टली, राइट? 3 नवंबर का ब्रेकफास्ट आपको याद नहीं है, लेकिन बहुत साल पहले, बहुत साल पहले, बहुत साल पहले मम्मी ने कुछ बनाया होगा, कोई प्रकार की खीर, कोई प्रकार का कोई एक डिश, वो बराबर याद है। There was a time that day on Diwali, mummy prepared or somebody prepared that one variety which I remember till now. होता है ऐसा? देखो, या तो आप वीडियो ऑन करो, या तो आप चैट में लिखो, या तो आप मुझे बोलो, मुझे कैसे समझ में आएगा? हाँ, राइट। सो ऐसा होता है ना कि आपको बहुत पुरानी कोई बात याद है और आप अभी 1 महीना पहला वाला ब्रेकफास्ट आपको याद नहीं है। क्यों? इसीलिए फीलिंग्स क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि वो जो 20 साल पहले आपने खाया था ना, उस दिन आपने कुछ फील किया था और उस फीलिंग के कारण वो आपकी मेमोरी बैंक में चला गया था।
So why feelings are created? Because, yes, I remember old, but not yesterday. Very true. Why feelings are created? To make our memories easy. अगर फीलिंग्स नहीं होंगे ना, तो हमारी मेमोरेबल थॉट्स, मेमोरीज इजी नहीं होंगी। लाइफ में हमको थोड़ी मेमोरीज चाहिए होती है, जैसे कोई फेलियर या कोई सक्सेस, हम उसको याद क्यों रख पाते हैं? ये काम ऐसे किया था तो ये खराब हो गया था, तो अगली बार वो काम नहीं करना है, राइट? तो जब हम फीलिंग्स के साथ चलते हैं, तो इट इज इजी टू डेवलप अ गुड मेमोरी। सो वाई फीलिंग्स आर क्रिएटेड? इंटरनली हमारी मशीनरी ऐसी है कि एक दिन में थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं। उसमें से कुछ थॉट्स होते हैं जो फीलिंग्स में चेंज हो जाते हैं। वो कुछ थॉट्स हमको याद रह जाते हैं, और वही थॉट्स आगे चल के हमारी मेमोरी में हेल्प करते हैं। सो फीलिंग्स आर क्रिएटेड टू जनरेट गुड मेमोरीज। हाउ टू सेल थ्रू द वेव्स ऑफ फीलिंग्स? अब क्या होता है, फीलिंग्स मुझे याद दिलाती है, ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ना भूल भी मतलब क्या बताऊं, ऐसा होता है कि फीलिंग्स के कारण हम डिप्रेस या सप्रेस होने लगते हैं। फीलिंग्स हमको समझ में नहीं आती हैं, तो क्या करना है इसमें हमको? वेल, there are two categories of feelings. One is boiling feelings, second is sinking feelings. एक फीलिंग बॉइलिंग, जो आपको एग्रवेट करता है आपके ऊपर, वो आपको जैसे विस्फोट कराता है अंदर। और दूसरा होता है जो आपको दबा देता है, अंदर 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 डालता है। ये दो कैटेगरी की फीलिंग्स को समझना जरूरी है। मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो मेडिटेशन से इन दोनों ही फीलिंग्स पर कंट्रोल होती है। कोई कोई फीलिंग्स हमको लगता है जैसे मैं दूसरों को डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा हूं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं खुद में, मुझे बुरा लग रहा है या मैं खुद में रो रहा हूं, तो मैं दूसरों को थोड़ी डिस्टर्ब कर रहा हूं, सो आपको क्या प्रॉब्लम है? वेल, आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, सही बात है, लेकिन आप अपनी एफिशिएंसी घटा रहे हो। आप धीरे 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 अपनी एनर्जी को लो कर रहे हो। इवेंचुअली वो आपकी परफॉर्मेंस पे असर डालेगा, और आपका परफॉर्मेंस फिर आगे चल के दूसरों पर भी असर डालेगा। इसीलिए इन दोनों ही फीलिंग्स को हम हैंडल कर सकते हैं मेडिटेशन की हेल्प से। सो पहले समझे, व्हाट डू वी मीन बाय बॉइलिंग फीलिंग्स? बॉइलिंग फीलिंग्स ये इतने ही नहीं है, आप ये नहीं समझना कि जितने दिख रहे हैं इतने ही हैं, बहुत सारे होते हैं। मैंने थोड़े से यहाँ लिस्ट लगा दी है, आप चाहो तो अभी लिस्ट बताओ तो हम और भी सारा, बहुत सारा लिख सकते हैं। यस, somebody is writing something. Yeah, there are many more. Okay, so frustration, anger, jealous, revengefulness, ego, hatred, और भी बहुत सारे बॉइलिंग फीलिंग्स है। बताएंगे आप? बताइए जरा, थोड़े बॉइलिंग फीलिंग्स बताइए। आपको बॉइलिंग एंड सिंकिंग फीलिंग का फर्क समझ में आया? बॉइलिंग फीलिंग्स आर दोज फीलिंग्स विच मेक यू ब्लास्ट, which is going to directly affect the other person, which will give you a pseudo feeling of high energy, which will make your uh, uh, potential for temporary time, आपकी कैपेसिटी को वो बढ़ा देगा। जैसे जब ईगो या जब एंगर होता है, ऑटोमेटिकली माय वॉइस गेट्स बिगर। सो ऐसा, child not work as per our accordingly. Well, lies, lies तो ठीक है। ये look, there are some situations, and feelings are other things.
Conspiracy is not a feeling. Conspiracy is a situation. A child is not working as per your as you want. It's a situation. We are talking about feelings. The proper feeling. Like child is not working. Body pride, yes. Body pride, body shame, and like a child is not working according to your will and wishes, like feeling of disrespect. That is feeling of disrespect. बट बॉइलिंग फीलिंग मतलब वो फीलिंग्स जो आपको सूडो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. वेल, somebody, Mr. Sameer, is writing a list of feelings: anxiety, confusion, fear. Well, anxiety is a boiling feeling. Then fear is a sinking feeling. Fear, there is a list of sinking feeling also. Well, this is important to understand this chapter before you go into the whole deep education of feelings. You just understand the bigger aspect of feelings. Sinking feelings are those feelings which will actually diminish your energy. It will make you to sink down inside. It will give you again a pseudo feeling of low energy, pseudo feeling of worth nothing, a feeling of uselessness. These are sinking emotions: resentment, fear, inferiority complex, guilt, nervousness, worry. These are sinking feelings. So when we say sinking feelings, these sinking feelings are like, uh, uh, एक अंदर में छिपा हुआ शत्रु समझ लीजिए. ये शत्रु आपको अंदर से खा रहा है. आप इसको बाहर नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आप अंदर ही अंदर इसके शिकार होते जा रहे हैं. और ये बॉइलिंग फीलिंग्स तो फिर भी लोगों को मालूम पड़ता है. जैसे लोगों को मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति इस बात से नफरत करता है, ये व्यक्ति गुस्से में है या फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि बॉइलिंग फीलिंग शो हो जाते हैं. सिंकिंग फीलिंग जनरली शो नहीं होते हैं. और सिंकिंग फीलिंग हमको अंदर डुबो देते हैं. अब जब हम ये बातें कर ही रहे हैं, इन सब चीजों को समझना क्यों जरूरी है, क्यों हम बैठकर यहाँ फीलिंग्स की बात कर रहे हैं. जिंदा रहने के लिए हम जिंदा हैं, इस बात की प्रूफ है कि वी फील समथिंग, दैट्स गुड. लेकिन व्हाई टू एजुकेट योरसेल्फ अबाउट फीलिंग्स? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टेकन ओवर बाय आवर फीलिंग्स. मुझे बुरा लग गया और मेरी परफॉर्मेंस पे असर आ गया. मुझे अच्छा लग गया, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई. मुझे गुस्सा आ गया, मैंने खाना खाना बंद कर दिया. मुझे रोना आ गया, मेरी नींद खराब हो गई. सो बेसिकली, systematically, according to the rule, thing is that I am thinking, these my ears, my eyes, they are imparting a thought over here. These thoughts eventually going inside, these are revolving inside my mind, and they are generating a feelings, right? These feelings are helpful to memorize a subject in my life. That's very good. अब होता क्या है, these feelings were created to keep your memories good, to help you to work easily further. बार बार आपको सोचने की जरूरत नहीं है. जैसे आपने कोई चीज को हाथ लगाया, जैसे आपने इसको हाथ लगाया, and you come to know कि this is tough. आपने फील कर लिया ये टफ है, तो आगे you know this is tough. आप बोले ये गिर भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा. So it will help you to increase your vocabulary, increase your
इंटरनल इमोशनल vocabulary. But होता क्या है, instead of deriving these feelings for my purpose, we are driven by our feelings. फीलिंग आ गई और हमारा परफॉर्मेंस, हमारी हमारी कारोबार पर असर हो गया। और इसी कारण हमको ये एजुकेशन लेनी पड़ती है, किस बात को कितना फील करना है और किस बात को नहीं फील करना है। राइट मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। वेल आई डोंट नो कि ये वाइट बोर्ड फिर से लगाती हूँ। वेल गुड। अब इसमें जो पिक्चर हमने बनाया था, देखो मेरी ड्राइंग ना थोड़ी ज्यादा सुंदर है, आप क्या करेंगे। वेल अभी यहां से हुआ क्या था, थॉट्स बने, थॉट्स अपने रास्ते जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, एक टाइम पर ये जाके एग्जिट हो जाते। हमने इनको रिवाइज कर लिया, ये जा रहे थे, रिवाइज कर लिया। रिवाइज करने के कारण क्या हुआ, ये इम्पोर्टेंट फोल्डर है, इस फोल्डर में ये थॉट अपने आप चला गया। अब हम इसको भूल नहीं पाएंगे, जो इम्पोर्टेंट फोल्डर में चला गया। अब जब ये इम्पोर्टेंट फोल्डर में चला गया, हम कहाँ पर थे कि ये फीलिंग्स हमको क्यों ड्राइव करने लगते हैं। जब ये इम्पोर्टेंट फोल्डर में चला गया, अब हम इसको भूल नहीं पाएंगे। इम्पोर्टेंट फोल्डर के दो भाग हैं, वन इम्पोर्टेंट बाय चॉइस एंड इम्पोर्टेंट नॉन चॉइस। चॉइस तो इजी है, जैसे वो मम्मी का बनाया हुआ वाला खीर, वो चॉइसफुली हमने याद रखा था, जैसे अपने स्कूल की बिल्डिंग, बचपन के दोस्त, चॉइसफुली याद रखा और वो हमारे चॉइस वाले फोल्डर में है। नॉन चॉइस, हम नहीं चाहते थे कि ये चीज मुझे याद रहे, लेकिन अननोइंगली उस चीज को मैंने इतनी बार रिवाइज कर दिया कि वो रिवीजन होते 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 वो अपने आप नॉन चॉइस वाली इंपॉर्टेंट फोल्डर में चला गया। अब उसको भूल नहीं सकते। अब होगा क्या, ये आपको, ये नॉन चॉइस वाली जो थॉट्स हैं, ये आपको डराइव करने लगते हैं। उस व्यक्ति का चेहरा देखकर फिर से आपका मूड खराब होगा, वो काम करते हुए फिर से आप परेशान होंगे, ये सारी चीजें होती रहेंगी। इसी चीज को खत्म करने के लिए हमारी फीलिंग्स हमको उतना ही असर करे जितना हम जरूरी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इम्पोर्टेंट फोल्डर है ना, जिसमें थोड़े से थॉट्स आ गए हैं हियर एंड देयर, इसको नॉन इम्पोर्टेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये परमानेंट हो गए हैं। आपको इसको नॉन इम्पोर्टेंट बनाने के लिए क्या करना होगा, ये वापस आपके पास बाहर आए। आपने आपका व्हाट्सएप देखा कभी, अगर आपने एक बार उसमें एक वर्ड टाइप किया, मानो आपने उसमें वर्ड टाइप किया अम्ब्रेला, UMBR, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे ही आप UMB टाइप करेंगे, आपका व्हाट्सएप क्या दिखाएगा, अम्ब्रेला। डू यू वांट टू टाइप अम्ब्रेला, आपके वो मेमोरी बैंक में आ जाएगा। ऐसे ही ये जो नॉन चॉइस वाली मेमोरीज है ना, ये हमारे अंदर पॉपअप होने लगती हैं। जब ये पॉपअप होती हैं, न चाहते हुए भी हम क्या करते हैं, न चाहते हुए भी हम इसको न चाहते हुए भी हम इससे ओवरकम नहीं कर पाते। अब जितनी बार ये मेरे सामने आ रहा है ना, जितनी बार, बिकॉज वी गेट ड्राइव्ड बाय दोज फीलिंग्स, आपको उसको कहना पड़ेगा, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, नॉट इम्पोर्टेंट। Every time we acknowledge some feelings, good or bad,
saying this is important, ये हुआ था ना, मैं ये चीज भूल नहीं सकता हूं, और उतनी बार वो आपकी इम्पोर्टेंट वाली फाइल में बढ़ता जाता है, वो और ही सेटल्ड इम्पोर्टेंट हो जाता है. मेडिटेशन हेल्प्स यू हियर टू मेक इट नॉट इम्पोर्टेंट. जो चीज भूलना चाहते हैं वो भूल सकते हैं, और जो चीज याद रखना चाहते हैं वो याद रख सकते हैं. वी हैव अ चॉइस, वी हैव अ फिल्टर. नंबर 1, इसमें आपको क्या करना है, दोस्त. देखिए ये क्या है, ये जो स्लाइड है ये बना किसी और के लिए था, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस. एंड वेल, there is a unique pattern to understand your waves of sinking feelings ke. It is not just about sinking feelings, it is about feelings. Number 1, come out of your perfect picture. परफेक्शन इज अ रियल इल्यूजन. क्या होता है, हम सोच के रखते हैं कि नहीं ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा. हाउ कैन आई डू दिस, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, मेरे से ये गलती कैसे हो गई, मुझे ये कैसे. और उसी परफेक्शन के कारण हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं. अभी थोड़ी देर पहले आप ज्वाइन कर रहे थे, उस समय एक बहुत ब्यूटीफुल सी कमेंट्री चल रही थी जिसमें बहुत अच्छे से बताया जा रहा था, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव अदर्स. इतनी रिलेवेंट कमेंट्री थी वो. सो बेसिकली क्या होता है, मेडिटेशन हेल्प्स यू टू मेक दिस नॉन, द अनचॉइस वाला इंपॉर्टेंट को नॉन इंपॉर्टेंट. कम आउट ऑफ द पिक्चर. मैं भी गलतियां कर सकता हूं, मैं गलती करके गलती से सीख सकता हूं, गलती करके उसका कंक्लूजन ड्रॉ करके उसको भूल सकता. Forgive yourself and proceed. Realize goodness in you. आपके अंदर एक बहुत अच्छा गुण है. वो कौन सा गुण है, उसको रियलाइज कीजिए. डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू सिंक इन, or do not allow yourself to boil outside. Right communication, optimism and confidence. Well, ये तो sinking feeling के हैं. Basically, अगर मुझे इन थॉट्स को रोकना है, इस फीलिंग ड्रिवन लाइफ को रोकना है, तो मुझे अपने आप को एक रोज एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा. उस सब्जेक्ट के अनुसार चेक करना पड़ेगा और लेट गो करना पड़ेगा. हर चीज को फील करने की जरूरत नहीं है, हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है. अच्छा, कोई चीज, फीलिंग्स का पर्पस ही था टू जनरेट वन मेमोरी, बट नॉट ऑल मेमोरीज. देखो कई लोगों को आदत होती है ना, घर में कहते हैं ये चीज भी इम्पोर्टेंट है इसको रखो, ये इम्पोर्टेंट है इसको भी रखो, ये भी इम्पोर्टेंट है रखो. एंड आफ्टर सम टाइम यू से आप इसमें से कितनी चीजों को यूज कर रहे हो, दे से वी डोंट नो. सो देन वन डे यू एक्चुअली क्लीन योर हाउस, जो नहीं यूज होने वाली चीजें हैं उसको निकाल देते हो. सेम हियर, सेम हियर. हमने इतने सारी फीलिंग्स अपने अंदर जमा करके रख ली हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं. उन फीलिंग्स को निकाल देना जरूरी है, उसे निकाल दीजिए. मेडिटेशन विल हेल्प यू टू रिकंसीडर योर फीलिंग्स. जो मैंने मान लीजिए ये हेडफोन है, ठीक है, ये हेडफोन मुझे दर्द कर रहा है, इससे मुझे दर्द हो रहा है. तो व्हाट विल हैपन विद दिस हेडफोन, आई विल क्रिएट अ फीलिंग, अब ये हेडफोन अच्छा नहीं है, मुझे ये दर्द कराता है. नेक्स्ट डे जब मुझे कहा जाएगा ये हेडफोन लगाने को, आई विल से नहीं, मुझे ये दर्द कराता है. बट इफ आई टेक अ स्पिरिचुअल अप्रोच, सिंपल, आई विल से, वेल कल ना मैंने इसको ऐसे लगाया था, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा था, लेट मी ट्राई दिस वे. हो सकता है, हाँ ये हेडफोन मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन हो सकता है ये मुझे काम कर दे, इस तरह से लगा के देखता हूं.
right? Spirituality gives you the other way, not to boil or not to sink, taking a balanced pathway. Balance is the key. So basically, Sapna Ben, I'll request you to make that same commentary which was running just before the program for meditation. Is this possible? Yes, Didi, sure. Right. So, because that time a few people were not there, we will make meditation. You listen to this and just close your eyes, listen to it, and you feel what is saying. Once you go into that, you will understand how many things we can let go and we become smart towards our feelings. I'll come back again after this meditation. ओम शांति। सीधा होकर बैठें, अपने शरीर को रिलैक्स करें और ध्यान को लेकर आए भ्रिकुटी के बीच, जहां हम तिलक लगाते हैं। देखिए अपने आप को एक बहुत शक्तिशाली चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं, मन की मालिक हूं, कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। मैं आत्मा हूं। हर संकल्प करने वाली शक्ति मैं आत्मा हमेशा सही सोचती हूं। मैं आत्मा कम सोचती हूं। I think right, I think less. हर शब्द बोलने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा कम बोलती हूं। मैं आत्मा धीरे बोलती हूं। मैं आत्मा मीठा बोलती हूं। मेरा हर शब्द आशीर्वाद है। My every word is a blessing. मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। मैं आत्मा फरिश्ता हूं। महसूस करें इसको, मैं फरिश्ता हूं। I am a divine angel. हर परिस्थिति में मैं लाइट रहती हूं। सबको प्यार और सम्मान देती हूं। असंभव को संभव कर देती हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं।
मुझसे शक्तियों की किरणें निकलते हुए चारों ओर फैल रही हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं फरिश्ता हूं। I am a powerful soul. I am a divine angel. मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा बहुत अच्छी है। वो बहुत बहुत अच्छे हैं। वो शक्तिशाली आत्मा है। उनका व्यवहार परफेक्ट है। हमारा रिश्ता मजबूत है। हर आत्मा को प्यार और सम्मान देने वाले, हर आत्मा को दुआएं देने वाली मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं फरिश्ता हूं। महसूस करें इसको। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं फरिश्ता हूं। I am a loveful soul. I am a divine angel. मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे कल्याण के लिए ही है। Everything is happening for my benefit. मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। सुख की किरणें मेरे से चारों तरफ फैल रही हैं। मैं फरिश्ता हूं। I am a happy soul. I am a divine angel. Om Shanti. So basically, to revise and to think those things which give you some energy. It's not that we need to revise and generate feelings for everything, what I see, what I listen to. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे हम मुंह से बोलते हैं ना, वैसे हम दिमाग से भी बोलते हैं. So don't speak verbally or mentally those things, those thoughts which you don't want to convert in feelings. अगर मैं चाहती हूँ मेरे आसपास सब अच्छा रहे, तो मुझे पहले अंदर सोचना पड़ेगा सब अच्छा है. And this is called emotionally intelligent. The emotions will derive your ambience. Your emotions become good enough to derive the ambience. It is not that ambience giving you some emotions and you are driven by that. Your performance is affected by that. So this is what we wanted to share, and the series has started. It is only one episode. We will go further
in this topic. Thank you so much. Thank you, sister. Thank you for the session today. And thank you to everybody else for attending. Let us meet the next week for the session 2 of this topic. Have a nice day. Thank you and Om Shanti. Thank you.